Hello student, welcome back to physics class. Today's lecture number 3, chapter number 9, optics. In the previous lecture, we have discussed about the spherical mirror, types of mirrors, convex, concave mirror. Then sign convention हम देखा, different terms related to mirrors like center of curvature, radius of curvature, then optical center, pole of the mirror, right? Then principal focus of convex and concave mirror, right? We also define the term linear aperture, angular aperture. Okay, तो आज हम देखने वाले focal power. Okay, so give the title focal power. Focal power, which is denoted by symbol capital P. So focal power होता क्या है? Focal power is nothing but the ability of a lens or mirror to converge or diverge the rays. वो कितना converge कर सकता है, कितना diverge कर सकता है, वो जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, जो टेंडेंसी होती है, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ अ लेंस और पावर ऑफ अ मिरर. ओके, तो चलो लिख लेते हैं. कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी, कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी of a lens or mirror is called focal power, which depends on focus or focal length. Okay, तो यहाँ पे P is equal to reciprocal of focal length small f, but that focal length should be in meter, right? So when we are taking focal length in meter, then its unit, SI unit of power, SI unit of P is diopter, capital D. So if focal length is negative, focal length small f is negative for like a concave mirror, right? Negative, then P will be negative. हम बोलते हैं ना कभी कभी मेरा माइनस नंबर है, मेरा प्लस नंबर है, तो वो डिपेंड क्या करता है, वो डिपेंड्स ऑन दी पावर ऑफ लेंस, राइट. तो मतलब लेंस कौन सा लगने वाला है, कॉन्केव लेंस लगने वाला है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होने वाला है. तो ये डिपेंड ऑन द पावर, नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर, राइट. जैसे नदी का नंबर, दूर का नंबर, ऐसा हम बोलते हैं, राइट. सो इफ एफ इज पॉजिटिव, then power will also positive, right. So this focal power depends on the aperture of the mirror or lens. For example, suppose अगर हमने concave mirror लिया, for concave mirror, okay, I have two concave mirror. एक तो मैंने ऐसे लिया, देखो जरा ठीक से, I took too much curve surface, ज़्यादा कर्व लिया मैंने, and this is the pole of the mirror. Then line passing through center of curvature, यहाँ पे कहीं पे center होगा, center of curvature and pole of the mirror. That line is called as principal axis, which we discussed in the previous lecture. Okay, तो ये principal axis है. यहाँ पे if the incident ray is parallel, अगर incident ray parallel लिया, so this will have more ability to converge the incident ray which is parallel to principal axis. तो ये जो इसकी जो एबिलिटी जो होगी कॉन्वर्ज की ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा एंगल कॉन्वर्ज होगा. तो ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी लार्ज. ओके, तो यहाँ पे कॉन्वर्जेंस पावर इसका ज़्यादा होगा. तो कॉन्वर्जेंस पावर ज़्यादा मीन्स द फोकल लेंथ विल बी स्मॉल. यहाँ पे जो स्मॉल एफ है, फोकल लेंथ है, इज वेरी स्मॉल, राइट. अभी दूसरा मिरर हम ड्रॉ करेंगे, कॉन्केव मिरर, राइट. तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कॉन्केव मिरर विच इनर सरफेस इज स्मूथ और पॉलिश, द आउटर इज पेंटेड और मेड इट ऑब्लिक. अभी नाउ आई विल टेक द अनदर मिरर हुज इट इज लाइक दिस, राइट. तो इसका जो कर्वेचर है ज़्यादा है, इसका कर्वेचर स्मॉल है.
तो इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी लार्ज, राइट। तो व्हेन वी आर टेकिंग इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका जो कॉन्वर्जिंग पावर है वो कॉन्वर्जिंग पावर कम होगा, मतलब क्या होगा, इट विल बी डिफ्लेक्ट लेस, राइट। तो यहाँ पे इट विल बी लाइक दिस। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी स्मॉल, दिस एंगल विल बी स्मॉल, राइट। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑफ फोकस। सो दिस फोकल लेंथ इज लार्ज, यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, focal length will be large. Okay, so here the converging power is less here, right? It converges less, so the focal length will be large, and as the focal length is large, right, so power will be less. So as small f is small, then P will be large. P will be large, and vice versa. Vice versa क्या है? As small f is large, P will be small. P will be power of optical power or focal power will be small. बच्चों, दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर। ये हुआ मिरर के बारे में। अभी हम लेंस लेंगे। अगर एक लेंस पतला है और एक लेंस ज़्यादा है, ठीक है, राइट। तो पहले हम पतला लेंस लेंगे। वी विल टेक दिस थीन लेंस। इफ यू टेक अ थीन लेंस लाइक दिस, ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द इंसिडेंट रे यहाँ पे। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, थीन कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका एबिलिटी क्या होगा, वो कॉन्वर्ज ही करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है, दैट रिफ्रैक्शन विल बी यहाँ पे कम डेविएट होगा वो, एंड एज अ कम डेविएट होगा तो दिस विल बी द फोकस एंड फोकल लेंथ विल बी लार्ज। यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। अभी इसके कंपेयर में अगर इफ आई टेक द थिक लेंस, अगर मैंने थिक लेंस लिया, राइट, इफ यू टेक अ थिक लेंस एंड टेक द इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इसका जो कॉन्वर्जिंग पावर है वो ज़्यादा होगा, राइट। तो इट कॉन्वर्ज मोर, राइट। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ विल बी स्मॉल, दिस इज स्मॉल। तो इसका पावर ज़्यादा होगा, P विल बी लार्ज, P विल बी लार्ज और मोर। यहाँ पे P विल बी स्मॉल, P पावर विल बी स्मॉल। Why does it so? Because here the focal length is large, because small f is large. यहाँ पे small f is small, focal length is small, so power will be more. So with the help of this we can just distinguish which will have more power, and इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आता है। हमने कल एक फॉर्मूला स्टेट किया, नॉट डिराइव नहीं किया, स्टेट किया, द मिरर फॉर्मूला, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। तो इसके बेस पे हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं। मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, और इट कैन आल्सो डिफाइंड एज द इमेज डिस्टेंस v अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बट विद द नेगेटिव साइन फॉर द मिरर। तो ये मिरर के लिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, दिस रेशियो विल बी नेगेटिव, ओके। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर मिरर। Then small m is v upon u or h2 upon h1 for lenses. This is for lens. तो आप बोलोगे नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से आया? तो नेगेटिव पॉजिटिव हैव कम फ्रॉम द साइन कन्वेंशन विच वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, ओके। इसको नोट डाउन कर लो। Okay student, next topic is the rules for drawing the image formed by spherical mirror or lenses. तो rules are common in both the cases, mirror में और lenses में रूल सेम है। तो आपको अगर मिरर के रूल समझ में आ गए तो आप लेंस के रूल आराम से आप फॉलो कर सकते हैं। सेम रूल टू बी अप्लाइड फॉर द लेंसेज ऑल्सो, ओके। तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे, पहला रूल, ओके। सो इफ यू टेक कॉनकेव मिरर लेंगे हम यहाँ पे,
और बाद में कॉन्वेक्स मिरर लेंगे। तो इफ यू टेक अ कॉन्केव मिरर, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर P, एंड यहाँ पे कहीं पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एंड दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ सपोज इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कोई भी इंसिडेंट रे लिया, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, बट इट विल ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिमेंबर, राइट। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है स्फेरिकल सरफेस पे, तो नॉर्मल ड्रॉन दैट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी नॉर्मल रहेगी वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी, तो ये नॉर्मल होगी। दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अभी यहाँ पे जो भी एंगल बना है, मान लो 20 डिग्री 30 डिग्री जो भी एंगल बना है, राइट, द सेम एंगल इट विल मेक विद एट दिस पॉइंट विद द नॉर्मल। तो यहाँ पे इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, बोथ द एंगल्स आर सेम। ऑलवेज रिमेंबर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट एनी सरफेस, चाहे वो प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस हो, राइट, इट विल ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन दिस रे रिफ्लेक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे मिलेगी, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। हमेशा याद रखना, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस में से ही जाएगा। ये कंसेप्ट, द सेम रूल फॉर लेंस ऑल्सो, राइट। मैं बार वो उसको दोहराऊंगा नहीं, रिपीट नहीं करूंगा, आपको प्रॉपरली समझना है। ये हुआ इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, दिस इज फॉर कॉन्केव मिरर, राइट। ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर, राइट। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, okay, after reflection from concave mirror, it will pass through, it is actually pass through principal focus, ओके। अभी हम लेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर विल बी लाइक दिस। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। वो क्या करता है? रेज को डाइवर्ज करता है, राइट। सो दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, राइट। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, तो लेट अस ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू पोल ऑफ द मिरर। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, right, and this will be the radius of curvature. So let us take the incident ray which is parallel to principal axis. एक incident ray लिया which is parallel to principal axis. अभी यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो इसका जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द स्फेरिकल मिरर इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसमें से जाने वाली जो लाइन है दैट इज द नॉर्मल। तो यहाँ पे जो एंगल बना है, सेम एंगल विल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको रिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज व्हाट अ रिफ्लेक्टेड रे, राइट। और ये रे को अगर अंदर के साइड पे अगर एक्सटेंड किया, व्हेन वी आर एक्सटेंडिंग दिस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो जहाँ पे मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, सो दिस पॉइंट विल बी द फोकस। दिस इज कॉल्ड एज द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एंड ये जो लेंथ होगा, डिस्टेंस, this will be the focal length of the convex mirror. So what we conclude from this, if the incident ray is parallel to principal axis and if it is striking on the surface of the convex mirror, then after reflection that reflected ray is appear to pass, actually pass नहीं हो रहा हो, appear to pass मतलब वर्चुअल है, राइट, appear to pass through focus। तो यहाँ पे जो भी फोकस फॉर्म है दैट इज वर्चुअल फोकस फॉर्म। यहाँ पे वर्चुअल फोकस, कॉन्वेक्स मिरर में क्या मिलेगा? वर्चुअल फोकस।
और ये जो फोकस है दिस इज द रियल फोकस। कभी कभी ये सीटी में से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर विल गेट वर्चुअल फोकस और रियल फोकस? तो कॉन्केव मिरर विल गिव द रियल फोकस वेयर एज द कॉन्वेक्स मिरर विल गिव द वर्चुअल फोकस। ओके, ये पहला रूल आ गया। अभी दूसरा रूल लेते, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल for formation of image, okay, so I will take the same concave mirror. This is the concave mirror which is painted from outside and the inner surface is polished, and the geometrical center of this concave mirror will be the pole of the mirror. This is called as the pole of the mirror, and इसका जो center of curvature होगा वो यहाँ पे होगा, because this mirror is the part of the sphere. तो यहाँ पे कहीं पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C पॉइंट, राइट। तो लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है, द रे पासिंग थ्रू, इसका फोकस कहीं पे यहाँ पे होगा, हाफ ऑफ दिस, राइट। हमेशा याद रखना जो फोकस होता है वो मिड पॉइंट ऑफ द C सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर में होता है। मतलब जो फोकल लेंथ होता है F इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी क्या लेंगे यहाँ पे, we'll take the focus point somewhere here F, and if the ray of light passing through focus which is striking on the concave mirror, यहाँ से आया और यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, ओके। तो इसका जो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉन होगी, दैट नॉर्मल विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नॉर्मल होगा हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगा। This is the normal drawn at the point of incidence. Okay, so this point will also obey the laws of reflection. तो ये जो एंगल होगा, the same angle will made by the reflected ray. Okay, तो ये एरो जो है, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हमेशा याद रखना। जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करते हो फिजिक्स में, प्लीज ड्रॉ द एरो, बिकॉज एरो इंडिकेट फ्रॉम वेयर द रे इज कमिंग और फ्रॉम वेयर द रे इज गोइंग। वो रे कहाँ से आया और कहाँ से जा रहा है, दैट इंडिकेट द एरो। तो यहाँ पे जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, द सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल मेक। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, दैट रिफ्लेक्टेड रे विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है वो पासिंग थ्रू फोकस है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किसको पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो बच्चों यहाँ पे दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे विच इज एग्जैक्टली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सेकेंड रूल है, राइट। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ इंसिडेंट रे is passing through focus, passing through actually pass हो रहा है, not appear to pass, actually pass हो रहा है, passing through focus, then after reflection it will become parallel to principal axis. Okay, हमेशा याद रखें, the ray passing through focus after reflection it will become parallel to principal axis. तो बच्चों दिस इज फॉर कॉन्केव मिरर। अभी हम ड्रॉ करेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर विल बी लाइक दिस, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। जो आउटर बल्ज सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, ओके। तो दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे फोकस होगा, राइट। सो व्हेन द रे इज स्ट्राइकिंग और द रे इंसिडेंट रे विच इज अपेयर टू पास थ्रू फोकस, जो रे फोकस में से पास हो रहा है, तो रे विल बी लाइक दिस यहाँ पे। तो ये जो इंसिडेंट रे है, दिस इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट दिस पॉइंट, इसका जो नॉर्मल होगा, द नॉर्मल एट दिस पॉइंट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल है। देन
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गेट डाइवर्ज. ओके, देन रिफ्लेक्शन के बाद अभी ये जो इंसिडेंट रे है, दिस इंसिडेंट रे अपीयर टू पास थ्रू फोकस. हमको ऐसा लग रहा है कि फोकस में से जा रहा है, ऐसा लगता है हमको. तो रिफ्लेक्शन होगा वहां पे. तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज व्हाट द नॉर्मल ड्रॉन, नॉर्मल है. तो यहां पे जो भी एंगल बना है, राइट, तो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस. तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगा वो? इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. देखो यहाँ पे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे. रिफ्लेक्शन के बाद इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये दो रूल हो गए. अभी तीसरा रूल. तीसरा रूल क्या है? इफ द इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग एट द पोल ऑफ द मिरर. ओके, तो चलो ड्रॉ करते कॉन्केव मिरर. दिस इज कॉन्केव मिरर. This is the pole of the mirror P. This is the principal axis. Now यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे होगा फोकस, half of it. Now if the incident ray is parallel to if the incident ray is striking at the pole of the mirror by making some angle, यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है with this. अभी यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल विल एक्ट एज द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल का काम करेगा. क्यों? क्योंकि द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विच ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, दैट विल बी द नॉर्मल फॉर दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विच इज पोल. ओके, तो ये जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, एंगल आई, हियर आल्सो इट विल ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. राइट, जो फर्स्ट लॉ हमारा वो ओबे करेगा. तो व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ इंसिडेंस, सेम एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस. इट विल ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, दिस इज फॉर कॉन्केव मिरर. अभी हम ड्रॉ करेंगे कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के लिए. तो कॉन्वेक्स मिरर विल बी लाइक दिस. फाइन. This is center of geometrical center of the mirror, which we call pole of the mirror, and the line passing through pole of the mirror and center of curvature. यहाँ पे center of curvature C होगा, and that line is passing through it. This is the principal focus. Okay बच्चों, और यहाँ पे somewhere यहाँ पे focus होगा, right? So here also the ray striking at the pole of the mirror पे स्ट्राइक हो रहा है. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दिस इज द थर्ड रूल टू गेट द इमेज. राइट, तो अभी यहाँ पे हम अलग अलग ड्रॉ करेंगे. 6 डायग्राम हो गया. राइट, और चौथा जो रूल है, चौथा रूल जो इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल रिट्रेस द सेम पाथ. इतना लिख लो पे मैं चौथा डायग्राम ड्रॉ करता हूं. ओके स्टूडेंट, जो हमने थर्ड रूल देखा ये इमेज फॉर्मेशन का, दैट वाज द फॉर द रे इंसिडेंट एट एनी एंगल एट द पोल, द रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. राइट, अभी चौथा रूल जो है, चौथा रूल क्या बताता है? इफ द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. राइट, तो चलो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन. दिस इज द कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर, this is the geometrical center which we call pole of the mirror. This is P, and this will be the center of curvature C, and a line passing through center of curvature and the pole of the mirror is called as principal axis. Okay, तो अभी जो लाइन है, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा अंदर लेता हूँ उसको, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. इफ द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे आ रहा है, ओके, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे? राइट, दिस विल स्ट्राइक एट दिस पॉइंट. यहाँ पे स्ट्राइक हुआ है. ओके, अभी मुझे बताओ यहाँ पे व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस? सोचो थोड़ा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? द आंसर इज 0. हाउ? लेट अस सी.
लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉन एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विच इज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वही नॉर्मल भी है, वही इंसिडेंट भी रहेगा। मतलब क्या हुआ, द इंसिडेंट रे कोइंसाइडिंग विथ नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड हेंस यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो होगा। एंड अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है देन व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, शुड बी आल्सो जीरो। तो एंगल आर भी जीरो होना चाहिए, राइट। अगर एंगल आर जीरो चाहिए तो जहां जो रास्ते से इंसिडेंट रे आया वही रास्ते से वापस जाएगा, गो बैक टू पैवेलियन, वही रास्ते से इट विल रिट्रेस द सेम पाथ। ओके, दिस इज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अभी कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, सॉरी ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स देखते हैं। अभी कॉन्वेक्स विल बी लाइक दिस, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस मिडल में। नाउ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वी हैव टू सी दैट द इंसिडेंट रे अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी इसको एक्सटेंड करूँगा इधर। तो दिस इज द इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे। बट दिस इंसिडेंट रे इज appear not actually, remember it is appear to pass through center of curvature, right? Now let us check, this is the point of incidence. What is the angle of incidence here? Again the normal drawn करना पड़ेगा। यहाँ पे normal drawn मतलब normal drawn at this point of incidence will pass through center of curvature। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड हो गया, बोथ आर मूविंग इन द सेम पाथ। तो यहाँ पे एंगल आई कितना बच्चों, एंगल आई जीरो। सो एवरी सरफेस चाहे वो प्लेन हो या स्फेरिकल हो, इट विल ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, डेफिनेटली देयर मस्ट बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी जीरो। टू गेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वही रास्ते से आएगा। तो वॉट एवर द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे will be the same path for reflected ray. This is the fourth rule. Okay, चलो लिख लेते हैं। As incident ray actually or appear to pass through focus, sorry, through center of curvature after reflection it will retrace okay. So as the incident ray actually or appear to pass through center of curvature, after reflection it will retrace the same path, okay, in both the cases. So these are the four rules to get the image formed by lenses or mirror, right? So to get the image formed by lenses or mirror, हमको कम से कम दो इंसिडेंट रे की जरूरत होती है, राइट। कम से कम दो रे। जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तब रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, राइट। तो बच्चों कम से कम कोई भी एक ले लो। एक तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, थर्ड इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट द पोल ऑफ द मिरर, एंड द फोर्थ द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी दो ले लो, तीन लिया तो भी चलेगा, पर लेकिन ज़रूरत नहीं है, मिनिमम दो रे लिया कोई भी। और जो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे मिलेंगे, वेयर दे विल मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ द इमेज। जस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल, इन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऑप्टिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है, राइट, और इजी टू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट, अभी हमने रूल्स देखे, 4 रूल्स देखे। वो रूल के बेस पे हमको अभी डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर,
राइट। तो सबसे पहले हम लेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। मान लो आई हैव दिस कॉन्केव मिरर, राइट। तो ये कॉन्केव मिरर अभी विंडो है, विंडो से बाहर जो भी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग या जो भी ट्री है, वो ट्री को यहाँ पे फोकस करने का, एंड जस्ट कीप दी दिस स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर और उसको फोकस करो, एंड इफ यू आर गेटिंग दी क्लियर इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज़ केप्ट एट इन्फिनिटी। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉन्केव मिरर है तो क्या करने का, दीवार के पास जाने का, विंडो के पास जाने का, विंडो के बाहर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ट्री है, बड़ी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को फोकस करने का, और थोड़ा साइड में से एक वाइट पेपर लेने का, एंड दैट वाइट पेपर वी कैन फोकस दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इफ़ यू आर गेटिंग अ क्लियर इमेज, तो ये जो डिस्टेंस है दिस मिरर और स्क्रीन, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द फोकस। उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। अंडरस्टैंड, फोकल लेंथ। तो चलो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट डायग्राम इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट infinity. Okay, so let's have the concave mirror. So ये concave mirror है which inner surface is polished and the outer surface is painted, okay, which made it opaque. तो यहाँ पे पोल ऑफ द मिरर आएगा P, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। तो पहला जो रे है, पहला रे हम क्या लेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी मोस्टली द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वी कैन से दैट paraxial ray, right? What we call that rays? Paraxial rays. Paraxial rays are those rays which are parallel to principal axis above and below, right? So I will take here two incident ray, दो incident ray लूँगा मैं. These are the two incident ray. Now we have seen the first rule to get the image formed by concave mirror, that is when the incident rays are parallel to principal axis, after reflection they will actually pass through focus. तो focus में से जाएंगे. तो ये जो point of intersection है, this point of intersection of the reflected rays will give the location of image. वो क्या देगा आपको, location of image. So this is what the f. और ये जो distance है, this distance is focal length. Means you will get the image at f. Okay? तो यहाँ पे लिख लेते हैं u is the object distance. कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे, तो u is equal to infinity. और इमेज डिस्टेंस जो है v इज इक्वल टू कहाँ पे मिला है, एट फोकस, मीन्स द वो फोकस कितने डिस्टेंस पे पोल ऑफ द मिरर से, स्मॉल f. ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल इन ऑप्टिक्स. ओके, सेम कंसेप्ट यूज फॉर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस ऑल्सो, राइट. तो ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं दिया है, दे हैव गिवन ओनली द टेबल, राइट. डायरेक्ट टेबल दिया, डायग्राम नहीं दिया है मैं, लेकिन मैं I am explaining you with the diagram so that you will find easy to solve the numerical based on this, right. तो u is equal to infinity, v is equal to f, right. अभी देखते हैं कि what kind of image we will get, image कैसे मिल रही है. अभी यहाँ पे reflected rays are actually meet, अगर reflected ray actually मिल रहे वहाँ पे, right, तो that will be the real image, right. We are talking about the characteristic of image, right. और what about size, highly diminished, point image, highly diminished image. ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ पे यूज होता है, मोस्टली दिस इज यूज बाय डेंटिस्ट. डेंटिस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे सर के ऊपर कॉन्केव मिरर लगा रहता है, और जो पेशेंट होता है, पेशेंट के कैविटी के अंदर से दिखना है तो उसको फोकस करता है, तो वहाँ पे लाइट गिरता है, राइट. मतलब सामने से लाइट आया, यहाँ पे कॉन्केव मिरर पे गिरा और रिफ्लेक्ट होके वो बराबर कैविटी पे गिरता है, तो कैविटी पॉइंट जो है दैट विल बी द फोकस. अंडरस्टैंड, हाईली डिमिनिश. तो इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2 अपॉन h1. h2 क्या है, साइज ऑफ इमेज, h1 क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, विच इज वेरी वेरी लेस देन 1.
बहुत छोटा होगा, या दिस कैन बी रिटन एज माइनस वी अपॉन यू। ओके, तो यहाँ पे माइनस एफ अपॉन इन्फिनिटी, तो क्या होगा, जीरो होगा। वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो। ओके, और वी कैन से मैग्निफिकेशन इज जीरो, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, राइट, नॉट जीरो, टेंस टू स्मॉल। तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, राइट। तो जस्ट राइट दिस फॉर्मूला, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम देखेंगे सेकेंड डायग्राम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी इन्फिनिटी से थोड़ा पास मिला है, और कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ पे समवेयर हियर। ओके, तो चलो डायग्राम ड्रॉ कर दें। एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे, सी पॉइंट, तो इन बिटवीन सी एंड पी देयर विल बी फोकस, यहाँ पे फोकस आएगा, एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट। अभी मैं ऑब्जेक्ट लूंगा यहाँ पे, आई विल कीप द ऑब्जेक्ट। जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये मिरर का जो आधा पार्ट है उसके ऊपर मत करो, द ऑब्जेक्ट शुड बी स्मॉलर दैन दिस साइज ऑफ द मिरर, हाफ साइज ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया, राइट। तो व्हेन वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ओके, सी के बियॉन्ड रखोगे। अभी क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में आ गया, पहले इन्फिनिटी पे था तो जो इमेज है वो छोटी मिली, डिमिनिश इमेज मिली, अभी ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में आ गए। तो कंपेयर टू फर्स्ट केस, कंपेयर टू दिस केस, यहाँ पे इमेज का साइज थोड़ा बढ़ेगा, लिटिल बिट ग्रेटर। ओके, तो चलो कोई भी दो इंसिडेंट रे लेते, तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा, आई विल टेक फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और सेकेंड जो होगा पासिंग थ्रू फोकस। ओके बच्चों, तो चलो पहला इंसिडेंट रे लेते हैं, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हमने रूल देखा है, द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे ट्रैवल करेगा, इट विल पास थ्रू फोकस। ओके, तो यहाँ पे भी वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगा, इट विल ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका जो नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल बी समवेयर हियर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये नॉर्मल होगा। अगर ये नॉर्मल होगा तो इट विल मेक द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ से जाएगा, तो ये दोनों एंगल सेम है। ओके, तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे मिल गया विच पासिंग थ्रू फोकस। अभी हम सेकेंड इंसिडेंट रे लेंगे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज पासिंग थ्रू फोकस। अभी ये फोकस में से जाएगा, तो दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस। तो अगर इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे ट्रैवल करेगा, ऑब्वियसली इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे, so this is the reflected ray which become parallel to principal axis। तो जहां पे ये दोनों रेज मिलते हैं, when both the reflected rays are actually meet, यहाँ पे दोनों एक्चुअली मिल रहे हैं, तो that will be the location of image, और जो इमेज होगी that will be the inverted image। यहाँ पे भी inverted image ही मिलेगी, here also you will get the inverted image, diminished लेकिन inverted। मैं बताऊंगा कि इरेक्ट इमेज कब मिलेगी, एक ही कंडीशन है जहाँ पे इन्वर्टेड मिलते। एक मिनट ज़रा, ओके, तो लेट अस राइट द ऑब्जर्वेशन फॉर दिस। द इमेज इज रियल इमेज, we will get inverted image, उल्टा मिल रहा है, inverted। what about the size of the image compared to this object? मान लो this is H1, this is H2। okay, तो यहाँ पे H2 less than H1, right? so smaller than object, What about magnification? Definitely less than 1. M is equal to H2 upon H1 which is less than 1. Okay, और कहाँ लिख सकते हैं, लोकेशन in between center of curvature and focus F,
in between C and F. So these are the characteristic of the image formed by concave mirror when an object is kept beyond C. Okay? तो अभी थर्ड डायग्राम जो है, थर्ड डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग. तो थर्ड डायग्राम है when an object is kept at center of curvature. When an object is kept at center of curvature C. C पे रखते. तो चलो कैसे डायग्राम मिलेगा. This is concave mirror. This is the pole of the mirror P. यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. तो समवेयर इट इज मिडल में फोकस होगा. Now keep the object at center of curvature. तो take the same rays parallel to principal axis और सेकेंड रे जो है पासिंग थ्रू फोकस. तो ये जो रे दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और जो पैरेलल है वो फोकस में से जाएगा. राइट. सो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली हियर both the reflected rays passing through focus and parallel to principal axis meet at this point and this is the location of image. तो यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे इमेज मिल रही है. ओके. अगर अपना लाइव क्लासेस होता तो आई कुड हैव शोन यू प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ कैंडल एंड मिरर. सो आई हैव द सेटअप. मेरे पास मिरर है, कॉनकेव मिरर. आई कुड हैव शोन टू यू प्रैक्टिकली अगर क्लास होता तो. ठीक है, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे इसका ये लिख लेंगे. व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन. द इमेज इज रियल. वाई इट इज रियल, वाई नॉट वर्चुअल. क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को एक्चुअली मिल रहे हैं. दे इंटरैक्ट एट दिस पॉइंट, नॉट अपेयर टू मीट, दे आर एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट. दे एक्चुअली मिल रहे हो यहाँ पे. राइट. इसलिए वो इमेज कैसे रियल. और इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी मिल रही है, विच इज इन्वर्टेड. तो यहाँ पे मिलेगी इट इज इन्वर्टेड. और what is the location at same point at C only, at the position of C. Position of C. What about size? The size will be same as that of object. Okay. Image size is same as that of object. What about magnification? The magnification will be m is equal to h2 upon h1, but h upon h which is 1. Magnification is 1. Okay. और क्या रहेगा बच्चों? All the observations we have written, please note down this. Okay. तो चलो यहाँ पे देखते हैं अभी फोर्थ डायग्राम. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन C एंड F इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. ओके. तो चलो यहाँ पे कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते. दिस इज द कॉनकेव मिरर. दिस इज द पोल ऑफ द मिरर. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. आप लोग को अच्छी तरह ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल. राइट. तो यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, तो इसका आधा यहाँ पे लिया फोकस. राइट. नाउ ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन C एंड F. तो यहाँ पे रखा है. टेक द ऑब्जेक्ट वर्टिकली अप, इरेक्ट. देन टेक द टू इंसिडेंट रे. यहाँ पे कोई भी दो इंसिडेंट रे ले सकते हैं आप. टेक द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे जाएगा? पासिंग थ्रू फोकस. तो फोकस में से जाएगा. फोकस में से जाएगा और इसको आगे एक्सटेंड कर दो. राइट. तीसरा सेकेंड रे जो है यहाँ पे जरूर नहीं कि आप फोकस में से ले लो, आप पोल ऑफ द मिरर पे भी स्ट्राइक कर सकते हो. तो चलो पोल ऑफ द मिरर ले लेते हैं. द इंसिडेंट रे विच इज स्ट्राइकिंग एट द पोल ऑफ द मिरर. तो यहाँ पे जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है
सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेड बाय दिस रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल. यहाँ पे नॉर्मल जो है, नॉर्मल इज दिस प्रिंसिपल एक्सिस. ये केस में नॉर्मल जो है प्रिंसिपल एक्सिस काम करता है, राइट. तो यहाँ पे इट विल रिफ्लेक्ट द अदर साइड, ओके, अदर साइड ऑफ द नॉर्मल, बट मेकिंग सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज दैट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पे आई विल ड्रॉ दी रिफ्लेक्टेड रे. सो इट मीट समवेयर हियर, यहाँ पे जो भी एंगल बनाया हो, राइट. तो यू विल गेट द इमेज बियॉन्ड सी, यहाँ पे मिलेगी. तो ये आपने देखा जैसे से ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पास आ रहा है तो इमेज दूर जा रही है, ओके, दूर दूर जा रही है, और यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी. सो लेट अस राइट द कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय दिस पोजिशन when an object is kept between center of curvature and focus, right. तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, इट इज रियल और वर्चुअल. तो आंसर इज इट इज रियल इमेज. क्यों रियल इमेज है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीट, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मिल रहे हैं यहाँ पे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेकेंड पॉइंट, लोकेशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी. थर्ड पॉइंट क्या आएगा, व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज. सो ऑब्वियसली द साइज इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड देन ऑब्जेक्ट. अगर इमेज मैग्नीफाइड है तो व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन स्मॉल m विल बी h2 अपॉन h1. यहाँ पे दिस इज h2 साइज ऑफ इमेज, दिस इज h1, राइट. लेकिन यहाँ पे विच इज h2 upon h1 is greater than 1 because h2 greater than h1. और क्या रहेगा, what is the next point? The next point is it is inverted. इमेज कैसे मिल रही, इन्वर्टेड मिल रही. और यहाँ पे पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज ग्रेटर दैन c, ओके, ग्रेटर दैन 2c and less than infinity, less than infinity. Sorry, something went wrong. 2c से छोटा है, in between 2c है. और यहाँ पे फोकस लेस देन f, लेस देन फोकस आएगा. बिटवीन f एंड c, सॉरी फोकस से बड़ा आएगा, ये बीच में ना, तो ग्रेटर आएगा. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज स्मॉलर देन 2f, छोटा होगा यहाँ पे. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज स्मॉलर देन 2f, नॉट 2c, इट इज 2f, इट इज 2f, सॉरी, क्योंकि ये फोकल लेंथ f है और ये दिस विल बी 2f. तो आपको ऐसे दिया जाएगा टेबल बनाते समय. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस दैन 2f, ग्रेटर दैन फोकल लेंथ. सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन. अभी नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे, पांचवा डायग्राम. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस. तो हाउ कैन वी राइट दिस, ये कैसे लिख सकते हैं, u इक्वल टू फोकल लेंथ f, u इज इक्वल टू f पे उसको रखा है, विच इज लेस दैन 2f, 2f से छोटा है, सॉरी लेस देन 2f, 2f ग्रेटर देन u, ऐसे आएगा. तो चलो डायग्राम ड्रॉ कर दी इसका. concave mirror, this is the pole of the mirror, this is center of curvature और we call it 2f, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे f बोल सकते हैं. तो ये f है और ये 2f है, राइट. अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस पे रखा है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट. अभी यहाँ पे आप इंसिडेंट रे जो है वो कोई भी ले सकते हैं. एक तो स्ट्राइकिंग एट द पोल ऑफ द मिरर ले लो, reflection like this,
दिस सेम एंगल, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और सेकेंड रे जो है, द सेकेंड रे यू कैन टेक द पास एपेट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो तो भी चलेगा, राइट. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा लगा लेते. सो दिस इज द इंसिडेंट रे. तो अभी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आया ऐसा लग रहा है, तो इट विल रिट्रेस द सेम पाथ, वही रास्ते से आएगा, जो रास्ते से आया वही रास्ते से जाएगा. लेकिन ये दोनों मिल रहे हैं क्या यहाँ पे? दे डोंट मीट, राइट. सो दे आर appear to meet at infinity, right. तो इमेज कहाँ पे मिलेगी? इमेज विल फॉर्म एट infinity, right. So image form at infinity, that is v is equal to infinity. और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? u is equal to f, small f. When u is equal to small f, image distance will be infinity, right. Then what about size? It will be highly magnified. तो m will be very very large than 1. तो m is equal to h2 upon h1, which is greater than 1. Then it is inverted. Is it real or virtual? So it is a real image. Real image will form. Okay, the real image will form. So these are the characteristic formed by this. Note down कर लो इसको. Now the next diagram, sixth diagram. When an object is kept between f and p, focus and pole of the mirror. चलो डायग्राम ड्रॉ करते. कॉनकेव मिरर, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर. यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस आएगा. ओके, तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है. नाउ दिस इज द ओनली पोजिशन वेयर वी आर गेटिंग वर्चुअल इमेज. अंडरस्टैंड? एक ही ऐसे पोजिशन है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर और वर्चुअल इमेज मिलेगी एंड इरेक्टिव इमेज मिलेगी. बाकी सब केसेस में यू विल गेट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. लेकिन ये केस में जब हम कॉनकेव मिरर को देखो, मैं दिखाता हूँ आपको. मेरे पास है कॉनकेव मिरर. सी, आई हैव कॉनकेव मिरर. व्हेन आई एम कीपिंग वेरी क्लोज, इफ आई एम कीपिंग माई फेस वेरी क्लोज टू इट, तो मेरी मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी. सी, यू कैन सी माई नोज, माई स्पेक्टेकल, माई आईज. तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, राइट. सो आई एम होल्डिंग दिस कॉनकेव मिरर विद इन फोकल लेंथ के अंदर रखूँगा तो आई कैन सी माई फेस, राइट. देख सकता हूँ मैं आराम से. तो हाईली मैग्नीफाइड. दिस वॉज यूज बाय ब्यूटिशियन. जो ब्यूटी पार्लर वाले होते, दे आर कीपिंग दिस कॉनकेव मिरर, बड़ा वाला होता है, क्लोज टू द फेस, सो दैट जो भी चेहरे पे जो भी पिंपल्स वगैरह है वो क्लियरली दिख सके. वो यूज होता है यहाँ पे, राइट. सो तो लेट अस अप्लाई दी रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. तो पहला रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. अब ये इट विल रिफ्लेक्ट पासिंग थ्रू फोकस. राइट. और जो सेकेंड रे होगा, दैट सेकेंड रे इज appear to pass through center of curvature लेंगे. इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे. एंड दिस रे इज ऑल्सो appear to, ये इंसिडेंट रे है. तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा, इट विल रिट्रेस द सेम पाथ, वही रास्ते से आएगा, बट यू हैव टू एक्सटेंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे मिलेगी. So this is what the position of image formed by concave mirror when the object is kept between
फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, राइट। तो दोनों केस में यहाँ पे इरेक्ट इमेज मिल रही, मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से ऐसा रखा तो आई विल गेट द इमेज लाइक दिस ओनली, ओके। बाकी सब केस में ऑब्जेक्ट ऐसा रखा तो इमेज यू आर गेटिंग इन्वर्टेड, उल्टा इमेज मिलेगा। यहाँ पे इरेक्ट इमेज मिल रहा है। दिस इज द ओनली वन केस, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ओके, what should be the position of object so that you will get virtual and erect image and magnified image। आपको कैरेक्टरिस्टिक पूरा दिया जाएगा कि you need to get the magnified, virtual and erect image। तो वो आंसर होगा the object should keep between focus and pole of the mirror। चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते फटाफट। so image is virtual, magnified, highly magnified, then erect and beyond mirror, beyond the mirror। okay, इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 विच इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है which is less than focal length, okay, और also less than 2f, right। f से भी छोटा है और 2f से भी छोटा है। और इमेज कहाँ मिलेगा, इमेज डिस्टेंस विल बी बियॉन्ड दिस, राइट। सो दिस इज व्हाट द ऑब्जर्वेशन फॉर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ना अभी हम देखेंगे सातवां डायग्राम, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे एक ही डायग्राम है, राइट, दो भी ले सकते हैं लेकिन एक ही लेंगे हम लोग। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एनीवेयर एल्स इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कहीं पे भी रखो आप तो आपको जो इमेज मिलेगा वो हमेशा छोटी मिलेगी। जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर में जो साइड में मिरर लगा रहता है, राइट, जैसा अभी मेरे पास है कॉन्केव मिरर, राइट। तो कॉन्केव मिरर में देखूंगा कि जो बच्चे बैठे दे ऑल लुकिंग वेरी स्मॉल, मेरा चेहरा भी बहुत छोटा दिख रहा है, देखो आप, यू कैन सी माई फेस, राइट, आई लुक वेरी स्मॉल, बहुत छोटा फेस दिख रहा है, बिकॉज इट विल गेट द डिमिनिश इमेज, राइट। जैसे यहाँ पे साइड में लगा रहता है तो पीछे के सब बेंचेस दिख रहे हैं मुझे लार्ज, ज़्यादा से ज़्यादा बेंचेस दिख रहे हैं, बच्चे भी दिख रहे हैं, ओके। सो स्मॉल इन साइज, तो इमेज विल बी स्मॉलर इन साइज, हाईली डिमिनिश। चलो डायग्राम ड्रॉ करते। सो यहाँ पे आएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस आएगा। आई एम कीपिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर एल्स, कहीं पे भी रखो, यहाँ पे रखो। टेक द इंसिडेंट रे। अभी ये डाइवर्जिंग मिरर है, वो डाइवर्ज करेगा, रिफ्लेक्टेड को डाइवर्ज करेगा, राइट। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रहेगा दैट विल बी अपीयर टू पास थ्रू फोकस। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल होगा, दैट नॉर्मल विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। This angle of incidence will be same as the angle of reflection, okay। Second जो है, I will take the incident ray which is striking at the pole of the mirror, यहाँ पे pole है, then it will reflect like this। What are the angle of incidence? Same angle of reflection। Now extend this reflected ray in the backward direction। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलेंगे, दीज आर दी रिफ्लेक्टेड रेज, दीज आर दी रिफ्लेक्टेड रेज। तो जब दोनों यहां पे मिलेंगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। और इमेज कैसे मिलेगी, इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे सीधा रखा है तो इमेज भी सीधा मिलेगी लेकिन छोटी मिलेगी,
ऐसा होता है क्या? मैंने यहाँ पे गाड़ी को, टू व्हीलर को, फोर व्हीलर को साइड में आईना लगा है, राइट, और पीछे से सब गाड़ियाँ उल्टी उल्टी दिख रही, होता है क्या कभी? नहीं, वो सीधा ही दिखता है। जो आदमी पीछे ड्राइव कर रहा है वो वैसे ही दिखेगा, वो कभी उल्टा नहीं दिखेगा, राइट। तो सेम प्रिंसिपल इज यूज, दैट्स वाई द कॉन्वेक्स मिरर आर यूज इन द व्हीकल, ओके, टू सी द रियर व्यू ऑफ द व्हीकल। पीछे वाला जो है, पीछे का जो व्यू है वो हमको देखना है तो हमको कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करना है, नॉट अ कॉन्केव मिरर, रिमेंबर, ओके। कॉन्केव मिरर यूज किया तो इमेज उल्टा हो जाएगा, ओके, पता नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पे एनीवेयर एल्स बिटवीन द पोल एंड फोकस, तो इमेज जो है वो इमेज हमेशा इन बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में ही मिलेगी। यू विल नेवर गेट द इमेज बियॉन्ड एफ, बियॉन्ड एफ कभी भी नहीं मिलेगी, रिमेंबर, ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। तो लेट अस राइट द इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज मिलेगी। वाई इट इज वर्चुअल बच्चों? इट इज वर्चुअल बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक्चुअल नहीं मिल रही, दे आर अपेयर टू मीट। देखो ना, डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट करता है? इट इज द अपेयर टू मीट एट दिस पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई इमेज इज वर्चुअल। देन इरेक्ट, इरेक्ट एंड ऑलवेज डिमिनिश। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो आप, चाहे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखो, इन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखो, इन बिटवीन यही कहीं पास में रखो, क्लोज दी कॉन्वेक्स में रखो, तो आपको इमेज हमेशा छोटी ही मिलेगी, राइट। तो ऑलवेज डिमिनिश, ऑलवेज डिमिनिश और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, राइट। और क्या रहेगा? लोकेशन इन बिटवीन, इन बिटवीन पोल एंड फोकस, beyond the mirror, beyond the mirror, that is the virtual image we will get, okay. So please make a note of this. Okay student, whatever diagrams we have drawn, right, so we, on the basis of the diagram drawn by us, right, that 7 diagrams, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल आपको एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है एंड मुझे व्हाट्सएप पे सबमिट करना है, राइट। तो देखो पहला कॉलम क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, रियल और वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड और मैग्निफिकेशन स्मॉल एम। तो मैग्निफिकेशन कितना है वो भी आपको बताना है, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग पोजीशन, दिस इज फॉर कॉन्केव मिरर, और ये वाला एक जो डायग्राम दैट इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये टेबल कंप्लीट करके एज अ होमवर्क आपको सबमिट करना है, राइट। तो टुडे वी विल आल्सो हैव वन न्यूमेरिकल विच इज सॉल्व इन द टेक्स्ट बुक, राइट। थीन पेंसिल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 20 सेंटीमीटर, इज केप्ट अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम इमेजिन करेंगे। तो डायग्राम विल बी लाइक दिस, ये कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे पोल ऑफ द मिरर P, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे C पॉइंट है, सो दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, और विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। और फोकस कहाँ पे होगा बच्चों? फोकस विल समवेयर हियर F। तो फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ विल बी -15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट विल बी -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द साइन कन्वेंशन, राइट। तो फोकल लेंथ मिल गया। अभी जो पेंसिल रखी, मान लो मैंने पेन लिया, तो पेंसिल का या पेन का जो एंड है, नियरेस्ट एंड विच इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पोल ऑफ द मिरर। तो ये हमारा पोल यहाँ पे है, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे, तो समवेयर हियर इट इज लाइंग लाइक दिस, ओके। तो चलो यहाँ पे ड्रॉ करते। तो 20 सेंटीमीटर मतलब दिस विल बी 20, और लेंथ ऑफ पेंसिल कितना है? 20, राइट। तो यहाँ पे नियरेस्ट एंड होगा, तो ये कितना होगा फिर? ये तो 20 चला गया, तो ये 5 होगा, दिस विल बी 5, तो ये कितना होगा? ये 10 होगा, और पेंसिल का दूसरा आधा भाग यहाँ पे होगा 10 सेंटीमीटर, ओके। तो ये पेंसिल है, ओके। तो हम व्हाट दे आस्क्ड टू फाइंड व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज ऑफ पेंसिल, ओके। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट जो भी दी है। तो सबसे पहले हम लेंगे गिवन H1
is equal to 20 centimeter, that length of the pencil. Then R दिया है, R is equal to minus 30 centimeter. Then U is equal to U1, पहला केस, that is the minus 20 centimeter. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका जो नियरेस्ट एंड है, ओके, फॉर नियरेस्ट एंड दिस इज एट 20 सेंटीमीटर, तो U1 लिया फॉर नियरेस्ट एंड ऑफ पेंसिल. फिर फोकल लेंथ मिलेगा F इज इक्वल टू R/2 विच इज 30/2 विच इज माइनस 15 सेंटीमीटर. Focal length is minus 15 centimeter. Why minus? For concave mirror. For concave mirror. Okay. Then अभी जो हमारा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v. यहाँ पे v1 लेंगे, v1 प्लस 1/u1 लेंगे. तो फर्स्ट विल कैलकुलेट v1 निकालेंगे, फिर v2 निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे. दैट विल बी द साइज ऑफ द पेंसिल. तो 1/v1 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u1. ओके, तो 1/f कितना है, 1 माइनस 15 माइनस ऑफ माइनस 20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू विल गेट माइनस 1/15 प्लस 1/20. तो दिस कैन बी रिटन एज, जो पॉजिटिव पहले उसको ले लेते, 1/20 माइनस 1/15, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 तो नहीं आएगा, 60 आएगा. तो एलसीएम विल बी 60. तो यहाँ पे डिनोमीटर में 60 आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 4. ओके, तो 3 माइनस 4 कितना आएगा, तो माइनस 1/60. तो यहाँ पे आएगा 1/v1 इज इक्वल टू माइनस 1/60. सो देयरफॉर v1 इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर. तो ये जो नियरेस्ट एंड है, दिस नियरेस्ट एंड विल फॉर्म एट दिस समवेयर हियर मिलेगा, क्योंकि ये इन बिटवीन सी एंड एफ आ रहा है ना. तो सी एंड एफ जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये वाला मान लो दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट, नियरेस्ट एंड ऑफ द पेंसिल इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. तो उसका इमेज जो है कहाँ पे मिलेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एट 60 सेंटीमीटर माइनस, बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट साइड. तो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा समवेयर हियर, इसका जो इमेज है यहाँ पे कहीं मिलेगा, तो इसका और दूर जाएगा. ओके, तो चलो फाइंड कर दे. अभी फॉर फारदेस्ट एंड ऑफ पेंसिल, फारदेस्ट एंड ऑफ पेंसिल, तो जो फारदेस्ट एंड ऑफ पेंसिल है, मार्कर जो है, मार्कर और पेंसिल की, तो मार्कर का जो टिप है, दिस पॉइंट इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज 20 और ये 20, तो 20 प्लस 20 तो हो गया माइनस, इट इज 40 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, u2 इज इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर. वाई माइनस, बिकॉज इट इज कॉनकेव मिरर, लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है. तो अभी हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/u2. हमको यहाँ पे v2 निकालना है, तो 1/v2 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u2. लेकिन f कितना है, फोकल लेंथ कितना है, 15, तो माइनस 15 माइनस ऑफ माइनस 40, सो दिस विल बी माइनस 15 प्लस 1/40. तो वापस सॉल्व करते इसको, 1/v2 इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/15. इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 तो नहीं आएगा, 80 भी नहीं, 120 आएगा शायद. 15 15 15 120 आएगा एलसीएम. तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 माइनस 8 माइनस 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20.
ओके, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। So V2 is equal to minus 24 centimeter on the left side. Okay. So actual the size of image will be, or length of image of pencil will be क्या आएगा, V2 माइनस V1। तो V2 कितना, -24 माइनस ऑफ 60, तो आ जाएगा -24 प्लस 60 विच इज 36 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर, लेंथ। ओके, नोट डाउन, कॉपी करना इसको अच्छी तरह।